Friends, welcome on Europedia, and Europedia is a platform where you keep on getting the information related to higher educational courses in India as well as abroad. And presently we are proceeding ahead with winter admissions in IITs and admissions in various courses, MS PhD courses in Europe. We are talking about Erasmus Mundus, we are talking about DARD scholarships, and also the fall admission in United States, especially funded PhD programs or direct PhD programs. So these are the flavor right now towards the end of September. This video today is related to the world's largest funding organization, which we call DARD. It's a German word and it is German Academic Exchange Service. Before I show you this document, it's a beautiful and very detailed document for all of you. It will give you a lot of information. You can have this document from website of Europedia. And let me tell you something about DARD. If you're freshers, you have done BTech 4 years course, you're fresher and you're looking for MS program in Germany, then DARD scholarship you can try. If you are having 2 years of job experience and your job is in the development related domains, development related domains means environment, related to policies, civil engineering, or there are some another domains like health and all, like you are health professionals, you are medical professional, you are civil engineer, you are environmental domain, so these kind of domains. Or if you are working with government and last 2 years you are working with government or public sector in energy domain, so if you have these 2 years of experience, then developmental related options are there in DARD for MS and PhD, and you get very good scholarship. So what is typical scholarship you get through DARD? You get 900 plus euro if you go for masters, and that is sufficient to meet your expenditure, and for PhD you get 1300 euro, but from Feb 2026 it is going to be increased to 1400 euro per month. Other than that, your travel expenses or conference expenses, these kind of things are also sometime covered. So PhD scholarship 1400 euro is really cool, it's good because you can end up saving some amount of money also while you pursue your PhD. So DARD scholarship is a wonderful scholarship and it is being offered to those candidates who are from developing countries like India. India is one of the countries, and it is given for pursuing your masters, which we call MS, or PhD, which we do after masters, and for postdoctorate fellowship. DARD is not for direct PhD because in Germany direct PhD opportunities are not there. So let me now start it, friends. So it is the best funding platform. DARD full form is this: Deutsche Akademischer Austauschdienst. Maybe I'm not pronouncing it properly, but in English it means German Academic Excellence Service, and is the best platform if you want to study in Germany. And this is the world's largest funding organization, and it is given for MS, PhD, postdoctorate fellows. And if you have 2 years of experience, it is even better because developmental related opportunities are for 2 years job experience people. So you can get yourself assessed by calling Ishita. So you can send your CV to Ishita on this number, on this WhatsApp. You can send and we can do the assessment whether you will get development related opportunities or not. And also I tell you, friends, the most of the applications open up in October and November. October to January is the duration depending upon the course, and in case you are planning, you need to have IELTS with you and you need to have APS certificate. APS certificate is actually the requirement to study for MS in any university of the Germany. You need to have APS certificate. APS again German name. So it is given by German embassy in Delhi, and it is costing you 18,000 rupees. It is nothing but validation of your certificate. So if you are saying I have done BTech from here, they just will certify or validate that yes, you are saying truth, so your degrees are authentic. So that is called APS certificate. Recently one of my students got it in 15 days, but it may take more than 1.5 months also when peak hits. So my advice to you is, if you are planning to study in German with scholarships, then you need to have IELTS score with you. IELTS band should be 6.5 plus or 6.5, and you need to have APS certificate. These two things are required. So this scholarship is, as I told you, this is the scholarship which is given, and there are some another advantages, health insurance and all these things are also sometimes provided to you. And for developing nation like India, there are
certain courses which are some advantage to you, and certain courses you can pursue. Now out of if I talk about the full doctorate program, PhD program, then EPOS like डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस. नीचे मैं दिखाऊंगा वो डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज कौन से हैं, बट लेट मी टेल यू, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, दीज कोर्सेज आर कॉल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज. सो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ जॉब एक्सपीरियंस फॉर दैट. स्टेम डिसिप्लिन में भी आप जा सकते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में क्या कोर्सेज है उसमें भी आप जा सकते हैं. बाकी ये दो हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए पीएचडी और एमएस के लिए वी कैन गो फॉर दिस कोर्सेज. एप्लीकेशंस आपको पोर्टल पे डालना होता है, उसका अलग से वीडियो मेरी टीम बनाएगी. तो डेडलाइंस जो है वो हर कोर्स के लिए अलग है, जो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में बताऊंगा. डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, EPOS, इस समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कॉलरशिप इसमें बहुत मिलता है. तो इफ़ यू आर लिंक्ड समवेयर टू दीज कोर्सेज, देन यू शुड अप्लाई इन डाड. आपके पास 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लाइक यू हैव डन सिविल इंजीनियरिंग एंड देन 2 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट रिलेटेड डोमेन्स, और you have done engineering in any domain and working in development related domains, then you can seek this scholarship. तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहाँ पे ये मिलता है, और जैसे मैंने बताया 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें एलिजिबल हैं, तो यस, इसमें इंडिया का नाम भी है. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो इसके है. ये यहाँ पे आई थिंक इंडिया इज़ मेंशन हेयर इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया. वी बिलोंग टू South Asia, so India is the country which actually students of India can get this. Duration of funding and कितना मिलता है ये मैंने आपको बताया. तो कुछ ये भी इंश्योरेंस कवरेज भी होता है. So these all are the benefits for that. सिलेक्शन प्रोसीजर, आपके पास डिग्री होना चाहिए, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और आपको मोटिवेशन लेटर में लिखना है दैट हाउ डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस. एंड आपको ये सारा वो लिस्ट है जिसमें एप्लीकेशन डेडलाइंस का लिस्ट अलग अलग कोर्सेज का होता है. जैसे डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का क्या है, फिर इकोनॉमी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड. तो ऐसे अलग अलग कोर्स, और कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी, और वो इंग्लिश में होगा कि नहीं. सो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज विच आई एम गोइंग टू शो यू टुडे आर इंग्लिश कोर्सेज ओनली. तो दीज आर द डोमेन्स विच आर इन दिस. सो इफ़ आई गिव यू अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, इंजीनियरिंग एंड साइंस कोर्सेज में ये आते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं. जैसे हाइड्रो साइंस इंजीनियरिंग, ये डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो नीचे मैंने आई हैव कवर्ड ऑल दिस इन मच डिटेल. सो टेक्सटाइल मशीनरी, हाई परफॉर्मेंस, ड्रेसडेन में, लेकिन आई थिंक ये जर्मनी में है. सो बाकी सस्टेनेबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, अगर आप कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हैं, इन डोमेन से रिलेटेड हैं, देन सर्टनली फ्रेंड्स यू शुड थिंक ऑफ अप्लाइंग इन डाड. सो टिपिकली किसको आप बोल सकते हैं कि जिसको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलने के चांस हैं, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है, या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, और प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको EPOS में जो डेवलपमेंट रिलेटेड स्कॉलरशिप्स एंड डाड के वो मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं. आप बैचलर आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं. लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन सबमिट करना है. एंड यू कैन अप्लाई अप टू 3 कोर्सेज. आप 3 कोर्सेज तक अप्लाई कर सकते हो विद द सेम मोटिवेशन लेटर, बट यू नीड टू जस्टिफाई वाई यू वॉन्ट टू अप्लाई इन दीज कोर्सेज, दैट यू नीड टू जस्टिफाई. सो आपको वो जस्टिफाई करना है, और आपको अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसका प्रूफ देना है. एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, राइट. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस. एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आपका ये सारा, मैं जो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, इसको देख के आप जा सकते हैं. डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जा सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, जिसका मैंने डिटेल नीचे भी दिया हुआ है. डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है. आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको इंग्लिश का प्रूफ, IELTS इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. हायर एजुकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स आपको चाहिए, APA सर्टिफिकेट चाहिए, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स है कॉलेज से आपको लेने पड़ेंगे. तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स. एंड अगर कोई डाउट है तो आप इशिता को कॉल कर सकते हैं, एंड शी कैन हेल्प यू फर्दर इन दिस. अब मैं आपको ब्रीफली दे रहा हूँ कि EPOS में इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग और साइंस रिलेटेड कोर्सेज कौन से हैं. ये मैंने पहले भी कवर किया. तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज. अगर आप इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं तो यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन डाड. एंड साइंस के और जो कोर्सेज हैं जो डाड स्पॉन्सर ये करता है, तो कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उनके लिए भी हैं, नेचुरल साइंसेज के लिए हैं. तो बहुत से कोर्सेज हैं जिनका नीचे मैंने लिस्ट दिया है. सो ऑल दिस कोर्सेज यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग. नाउ व्हाट आई विल डू,
for one particular domain of engineering or knowledge, I will tell you which courses and which universities you can target. So for computer science, IT, software, these are the universities like Masters of Science in Computer Science, University of Passau mein you can think of. And similarly cyber security, if you want to go for cyber security, this is the domain. So in Masters of Computer Science also which specialization you can go for, you can understand from here. और उसी में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मेंटर्स दे देंगे कि इस यूनिवर्सिटी का डेडलाइन ये है, एप्लीकेशन ऐसे है, ये उसका ये है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट pursuing masters in German universities is the best as of now, cost wise also, quality of education wise also, and probability of selection also. So this is for computer science. And similarly these fields are for mechanical engineering, mechatronics if you want to do, or if you want to do design engineering, material science, or if you want to do robotics, you know. So these all are there. Some people are interested for design engineering, robotics, और यू वांट टू परस्यू एरोस्पेस. सो यहाँ पे सारा मेंशन है कि कौन से कोर्स में कौन से स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं. दीज ऑल आर इंग्लिश कोर्सेज. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन. So you can identify if you want to study in communication or energy or e-mobility or electric drives or embedded system. So whatever, I mean that depends upon your own interest, but these are the universities. And then similarly civil engineering, but civil engineering के लिए developmental related domains बहुत अच्छा option है, तो जो मैंने नीचे cover भी किया हुआ है. And then we go to chemical engineering. So these are the universities and these are the domains for chemical engineering. And then after chemical engineering we get to see MS in environmental engineering. तो environmental engineering में भी ये domains हमारे पास हैं. So MS in environmental governance, MS in water resource and environmental engineering, air quality control. So these are the different domains which you can target. Okay, so management, business management related MSc programs are also there. Many of you want to go for business, and MSc in business management is far cheaper than MBA programs. So maybe you can always target in German universities the MSc. Again उसके लिए आपको IELTS चाहिए होगा एंड APA सर्टिफिकेट चाहिए होगा. एंड अगर वो डेवलपमेंट रिलेटेड डोमेन्स में भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. जैसे MSc इन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट. सो MSc इन मैनेजमेंट ये एर्लांगन में है. MSc इन बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज फ्रेंड्स ये हैं. MSc इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो डार्ट के अंडर आती हैं, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज. सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देन फार्मास्यूटिकल. दीज आर सम ऑफ द डोमेन्स फॉर यू. अब मैं आपको डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो डार्ट के अंडर आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो ऊपर हमने मेंशन किया. और 26-27 के लिए हमें अभी अक्टूबर में अप्लाई करना है फ्रेंड्स. तो एक एक कोर्स बताऊंगा और आप स्क्रीन रोक के देख भी सकते हैं. स्मॉल एंटरप्राइज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और ये अक्टूबर में इसका डेडलाइन एप्लीकेशन का होता है. बैचलर डिग्री आपके पास चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए. बिकॉज ये सारे जितने आपके कोर्सेज हैं फॉर डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिनमें स्कॉलरशिप मिलता है, फुली फंडेड है, इनमें 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. और आइल्स एंड टोएफल भी मेंशन किया होता है कि टोएफल वगैरह कितना चाहिए आपके पास. तो 80 के आसपास टोएफल या आइल्स 6.5 बैंड. डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसमें भी आपके पास कोर्स जो है ये सारे इंग्लिश के कोर्स हैं. डेडलाइन 30 सितंबर है इसका. राइट. BA की रिक्वायरमेंट है इसमें, लेकिन BA के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस. पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस इसमें आपके पास हो, यू कैन गेट दिस. और 6 बैंड में भी होता है. जैसे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे पास बैंड आइल्स का कम है, 6 बैंड, या टोएफल 79-80. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसमें सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आप बैकग्राउंड के अगर हैं, इसमें जून में डेडलाइन था. हाइड्रो साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आइल्स एंड टोएफल की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स देख लेना. मिनिमम 6 हर डोमेन में और 6.5 ओवरऑल. नेचुरल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो हाइड्रो साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका रहेगा. सो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट. देन
water resource and environmental management, Leipzig University, Hanover. Then sustainable renewable energy technologies, SURE, अक्टूबर 15 अक्टूबर तक. फोटोमेट्री एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स 15 अक्टूबर. एयर क्वालिटी कंट्रोल सॉलिड वेस्ट वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग, स्टुटगार्ट. नवंबर से 15 फरवरी के बीच में, तो इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है. एयर क्वालिटी कंट्रोल. अगर आप केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनवायरनमेंट, प्रोसेस इंजीनियरिंग से हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं. अगर आप इसका एक्सपीरियंस है आपका. नेचुरल हजार्ड एंड रिस्क इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. अर्बन मैनेजमेंट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन. टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमंड, अर्बन प्लानिंग, इंटीग्रेटेड अर्बनिज्म एंड सस्टेनेबल डिजाइन. तो अगर आप मैच कर रहा है आपका इनके साथ, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम. मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डायरेक्ट पीएचडी नहीं होता. अब ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल हेल्थ, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलके आपको ये डिग्री देंगी. तो आपके पास 3.5 ईयर्स का बैचलर होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. तो ये एमबीबीएस वाले या हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है. टिल 31 आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल हेल्थ, ये भी अच्छा कोर्स है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए. नर्सेज, फिजिशियन, डॉक्टर्स जिन्होंने 2 साल काम किया है, तो आपकी डिग्री अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं. ग्लोबल हेल्थ, मास्टर्स इन ग्लोबल हेल्थ, हेल्थ वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स इसमें जा सकते हैं. सो यू शुड हैव हेल्थ, लाइफ साइंस, सोशल साइंस में आपका बैकग्राउंड. लाइक देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड. मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल हेल्थ, पीएचडी प्रोग्राम इन मेडिकल रिसर्च, पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च. मेडिकल से अगर आपका डिग्री है और 3 साल का आपके पास 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं पीएचडी में. और ये दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में है, तो यू स्टिल हैव ऑप्शन फॉर दिस, लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर मेडिकल रिसर्च. मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है. एजुकेशन मैनेजमेंट, अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, सो 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग दैट. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंपटीशन लॉ. इसी फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग से हैं आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ परसुइंग दिस. इंटरनेशनल मीडिया स्टडीज, अगर आप मीडिया बैकग्राउंड से हैं, बैचलर किसी में भी हैं, यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन दिस. सो फ्रेंड्स, अगर आप MS PhD डार के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यस, गेट इन टच विद इशिता एंड शी विल डू द असेसमेंट ऑफ योर प्रोफाइल. और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इंटरनेशनल एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक राइट ट्रैक, because getting scholarship and getting good university is the first right step you take, and after that career is you get the career according to the decision which you take right now to explore your opportunities abroad. Thank you.